welcome to the students. Now this is another topic. You can say this is another lecture of the topic laminar flow. This is the fifth lecture I am taking here. So in this lecture we will discuss about the momentum correction factor as well as the energy correction factor, its definition, its derivation also. You understand? So let us start the lecture. तो आज जो हम जहाँ पे लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे इसका जो हमने सीरीज टॉपिक हम अपना लिया था लैमिनार फ्लो का, तो लैमिनार फ्लो का जो फिफ्थ लेक्चर है वो इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका मोमेंटम करेक्शन फैक्टर एज वेल एज द एनर्जी करेक्शन फैक्टर। तो इसमें इसका हम डेफिनेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, डेरिवेशंस इसकी करेंगे, राइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट वन आल्सो, यू अंडरस्टैंड कि आपका जो डेरिवेशन पार्ट है, जी आपका डेरिवेशन पार्ट इफ यू आर अपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशंस, वहाँ पे ये डेरिवेशन पार्ट दैट इज इम्पोर्टेंट आल्सो, यू अंडरस्टैंड। तो आज जो इसका है इसका हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे दैट व्हाट इज द करेक्शन फैक्टर, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। आपका मोमेंटम करेक्शन फैक्टर व्हाट इज दिस? इट इज यू कैन से इट इज द रेशियो ऑफ द मोमेंटम ऑफ फ्लो पर सेकेंड through the section at the actual velocity, you understand that, as well as the momentum of flow per second based on the average velocity. You understand this? तो momentum correction factor क्या है? ये रेशियो है। रेशियो किस चीज का रेशियो है? momentum of flow per second based on actual velocity to the momentum of flow per second based on the average velocity. You understand? And that is denoted by the letter beta. इसको हम बीटा के साथ डिनोट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट वन टू अंडरस्टैंड। तो डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन, डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें। डेफिनेशन, so definition इसकी क्या है? It is defined as the ratio of the momentum of flow per second. Definition, it is defined as the ratio of momentum of flow per second based on, पहले हम based on जिसका डेफिनेशन करें then we'll explain, based on the actual velocity to the momentum of flow per second based on the average velocity through the section, through the section. You understand? So it is defined as the ratio of, ratio किस चीज का है? That is momentum of flow per second. फ्लो का जो मोमेंटम पर सेकंड किसके ऊपर बेस करेगा? That will based on the actual velocity
पहले हम मोमेंटम ऑफ फ्लो लेंगे on the basis of actual velocity, then we will find out the momentum of flow per second based on the average velocity and the ratio of this through any section in the, you can say this is the pipe flow, the laminar fluid is the fluid is passing through it, laminar flow is happening here, and we have to find the momentum correction factor. तो momentum correction factor में हमें ये क्या हो गया इसका, देख इसका मैथमेटिकली अगर हम लिखें momentum of flow per second based on actual velocity divided by momentum of flow based on actual velocity and momentum of flow per second based on average velocity, and this is denoted by the letter beta. You understand? This is denoted by the letter beta. So this is the definition. This is the definition of the momentum correction factor. You understand this? तो इसका definition आप लिख लीजिए. Now we come to the part of its derivation. So derivation of the correction factor, हम इसका derivation part को so let us start the derivation. तो इसका अगर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सपोज को हम एक सेक्शन लेते हैं, दिस इज द योर सेक्शन, राइट. तो इसका जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पैराबोलिक, राइट. सो पैराबोलिक इज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस. Velocity distribution. Velocity distribution of laminar flow through the pipe at any section, that is parabolic. क्या बोल दिया? You understand? So parabolic you can say, ये पीछे भी आपने पढ़ा, that is the parabolic velocity distribution होगा. You understand? So derivation part, that we will start the derivation. Understand it. It is the pure mathematics. There's not nothing much here. But let us understand that how we will drive it, how we will find the value of the momentum correction factor beta. इसका कितना value होगा, and how we will drive the equation of that. So, as you know, when there is a laminar flow through the pipe, you understand that. So, velocity distribution at any radius r, that is given by the कौन सा equation था? So, you can say that
So velocity distribution, ये velocity distribution क्या था? Just tell me velocity distribution of laminar flow through सर्कुलर पाइप, हम कौन सी पाइप कंसिडर करें? सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस, कितना रेडियस है? कैपिटल आर, ऑफ सर्कुलर पाइप ऑफ सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस आर at any, सर्कुलर पाइप का रेडियस कितना था? At any radius स्मॉल r, अगर किसी रेडियस के ऊपर स्मॉल r जो रेडियस है, दिस इज द स्मॉल r रेडियस, velocity distribution of the laminar flow through circular pipe at any radius r is given by, ये तो अपना पीछे ट्राई किया था, is given by क्या था? That is u bar. This is equal to 1 upon 4 mu minus del p upon del x into, this is minus 1 upon 4 mu minus del p upon del x into r square minus r square. This is the velocity distribution at any radius r is given by this equation. Right? This is the velocity equation. तो ये तो आपको velocity distribution का equation पता है कि जब आपका laminar flow किसी पाइप के थ्रू, सर्कुलर पाइप है, उसमें laminar flow is happening here, and you want to find the velocity of the flow at any radius r, that is given by this equation. That is, at any radius r, I have taken a small ring here. इसका radius क्या है? Small r है. So if we want to calculate the velocity distribution of the laminar flow at any radius r, ये आपका velocity का equation है, that you know it, ये आपको पता है, you understand that. Now, what we will do? Consider, अब देखिए इसका हमने definition find out करना है, you understand? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक circular ring consider करेंगे, you understand? जिसका radius जो है small r होगा, right? और उसका जो thickness है, जो उसकी width है, that is dr. And dA is the small area. You understand? तो dA आपका क्या है? इसका small area है. तो अगर हम ये elementary ring करें, consider and elementary ring, कोई एक elementary ring ये अपना elementary ring you have taken it of radius small r, right? Width इसका कितना है? Width इसका dr है, and the area is very small, and that is denoted by a. तो जो इसका area है, किसका area? area किसका? आपका elementary ring का. तो ये आप कह सकते हैं कि area इसका dA. You understand this? dA is the area of this. You understand this? तो इसका मतलब है कि dA कितना होगा? अगर मुझे एरिया इसका फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द dA? एरिया ऑफ द स्मॉल रिंग, देखिए दिस इज इक्वल टू 2 by r into dr, right?
दिस इज द एरिया ऑफ द स्मॉल रिंग। हमने क्या किया, स्मॉल रिंग का एरिया निकाला। You understand this? So the area of the small ring, this is given by this one. अब बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेसिकली मोमेंटम, रेट ऑफ, यू कैन से मोमेंटम। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द मोमेंटम ऑफ फ्लो पर सेकेंड बेस्ड ऑन द एक्चुअल वेलोसिटी टू द, ठीक है ना। तो हमें इस तरह से हम क्या निकालेंगे, मोमेंटम ऑफ फ्लो पर सेकेंड बेस्ड ऑन द एक्चुअल वेलोसिटी। अब देखिए मोमेंटम निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने वी हैव कंसीडर स्मॉल ए रिंग हियर जिसका एरिया वे फाइंड आउट। अब ये स्मॉल रिंग है तो इसमें जो रेट ऑफ फ्लो जो होगा फ्लूइड का, दैट इज ये किसके बराबर होगा, राइट, रेट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द रिंग। अगर मैं देखिए रेट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द रिंग, मैं कहता हूं रेट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द रिंग दैट इज डिनोटेड बाय dq। और अगर हमें dq हमें फाइंड आउट करना है तो ये किसके बराबर होगा, मास, ये क्या होता है, मास इनटू, दिस इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, राइट। We have to find out that dq. This is equal to area into velocity. Sorry, this is area into velocity, right? dq किसके बराबर होगा, रेट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग टू द रिंग, एरिया into velocity। तो एरिया आपका क्या है यहाँ पे, 2 pi r into dr, because I am considering the small ring and the area of the small ring, that is 2 pi r into dr, and velocity is u, right? velocity आपकी कितनी थी, velocity आपकी u के बराबर, velocity is u, right? So rate of flow, fluid flowing through the ring you have calculated, and तो हमें फाइंड आउट करना है मोमेंटम। तो अब मोमेंटम आपका, मोमेंटम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द रिंग, through the ring, right, of area dA, जिसका एरिया कितना है dA। तो मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड क्या किसके बराबर होगा, मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड, दिस इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम तो आपको पता है, दैट इज इक्वल टू मास into velocity, राइट। मोमेंटम किसके बराबर होगा, क्योंकि एक्चुअली जो हम डेरिवेशन हम जहां से करेंगे, रिंग हमने कंसिडर किया, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, वी हैव कंसिडर्ड ए वेरी स्मॉल रिंग हियर व्हिच इज हैविंग ए स्मॉल रेडियस r, width of this ring or thickness of the ring, that is equal to dr, and the area of the small ring we have calculated, this is equal to 2 pi r dr। हम पहले
we will calculate the momentum of the flow per second through the ring. हम पहले momentum of flow per second through the ring we will calculate, and then for calculating the whole total momentum of the flow per second through this pipe, then we will integrate this. हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, टोटल मोमेंटम हमें फ्लूइड का मिलेगा. यू अंडरस्टैंड दैट? तो जहां पे जो मेरी डेरिवेशन थी आप याद रखिएगा, ये जो वैल्यूज हमें फाइंड किया रेट ऑफ इसमें कितना फ्लूइड का रेट जो था इसके रिंग से पास करेगा dq, बट बेसिकली एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंटम, और मोमेंटम आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी होता है. यू अंडरस्टैंड दैट? तो मास को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इधर 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 लिखते हैं दैट तो मैंने लिखा मोमेंटम ऑफ अ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू द रिंग, मास इनटू वेलोसिटी. तो आप कह सकते हैं मोमेंटम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू द सेक्शन भी लिख लीजिएगा. ये हम थ्रू द रिंग कर रहे हैं, थ्रू द रिंग राइट. तो मास इनटू वेलोसिटी था, तो मास को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, मास को अगर हम लिखें रो इनटू dq, डिस्चार्ज इनटू डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू मास राइट. और वेलोसिटी आपका यू अंडरस्टैंड, वेलोसिटी आपका क्या है, u है. मीन्स कह सकते हैं कि ये आपका मास, मास किसके बराबर है, मास, अगर मास लिखे हम m, दिस इज इक्वल टू दैट इज रो इनटू डिस्चार्ज या रो इनटू वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू मास. अंडरस्टैंड? तो रो इनटू dq इनटू u, राइट. यू अंडरस्टैंड दिस? ये आपका आ गया मोमेंटम. dq की वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड, तो सब्स्टिट्यूट कर दें और can say this implies, ये dq की जगह आप सब्स्टिट्यूट करें, रो इनटू dq क्या है, 2 पाई r इनटू dr इनटू u, 2 पाई r इनटू dr इनटू u, and this is equal to into, understand this? Rho dq की जगह मैं ये लिख लिया, and this is u, that is u. You understand? So this implies rho into इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए पूरा 2 पाई रो, ये u स्क्वायर ये आ जाएगा इधर, u स्क्वायर इनटू r, you understand? टू पाई रो u स्क्वायर r इनटू d, you understand? तो ये आपका आ गया मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड. दिस इज द मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू द रिंग. तो रिंग के बीच में जो आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, हमने उसका मोमेंटम वी हैव कैलकुलेटेड. यू अंडरस्टैंड? अब देखिए u स्क्वायर, अब u जो था, u इज द वेलोसिटी एट एनी रेडियस r, तो हम वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आप कह सकते हैं this you can say like this, 2 pi rho, u क्या था आपका,
1/4 mu minus del P upon del X R square minus R square, ये आपका U था, R square राइट into R, you understand? हमने U का जो वैल्यू था velocity distribution से you have calculated that the velocity of a fluid at any radius small r, that is given by this equation. U का जो equation था उससे equation आपको दी, तो J आपका आ गया. You understand this? This is the momentum of the fluid flowing per second through the rain. जहाँ तक तो चीजें आपकी क्लियर हो गई. हमने यूज किया का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और ये आपकी बुद्धि के यहाँ पे क्लियर. You understand? Now we have to find the total actual momentum, right? So therefore the total actual momentum of a fluid per second across the section so total actual momentum of flow per second through the section is. तो अगर हमें टोटल एक्चुअल मोमेंटम फाइंड आउट करना है थ्रू द सेक्शन, तो इस इक्वेशन को हम 0 से कैपिटल R, रेडियस मैक्सिमम क्या है R है, कैपिटल R है, तो 0 से कैपिटल R को हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेट करेंगे. यू अंडरस्टैंड दिस? एंड दिस इक्वेशन तो बीच में लिख लीजिए आप 2 pi rho into 1/4 mu del P upon del X ये भी आप होल स्क्वायर कर लीजिए, तो पूरा कर लीजिए अपॉन del X. इसको होल स्क्वायर अलग कर लीजिए और इसको हमला कर देंगे R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू R इंटू dr. ये मैंने इसलिए किया बिकॉज all these are constant, right? You understand that? So all these are constant. I will take them out. ये सारी constant terms हैं, तो इसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले जाऊंगा. You understand this? तो लिखिए इसमें, देखिए इसको आप ऑल दीज आर कांस्टेंट, उसको बाहर ले लीजिए. 2 pi rho into 1/4 mu del P upon del X होल स्क्वायर. इस तरीके से आ जाएगा ये, और अंदर आपका आ जाएगा ये इंटीग्रेशन का साइन जहाँ पे आ गया
0 से r, ये मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले ली। अब इसको आप खोलीजिए, यू ओपन दिस, तो क्या आएगा जी, ब्रैकेट डालिए इसमें r4 प्लस r4 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, राइट, इंटू r dr। यू अंडरस्टैंड दिस? ये आपका आ गया। दैट इम्प्लाइज 2 पाई रो, इसको आप पाई रो इंटू 1/16 म्यू स्क्वायर माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स, राइट। इसको आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये अभी ऐसे ही रहने दीजिए 0 से r, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा r4 इंटू r माइनस r5 माइनस 2r स्क्वायर इंटू r क्यूब। You understand? और यस, नाउ इंटीग्रेट दिस, आप इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये आ गया 2 पाई रो इंटू 1/16 म्यू स्क्वायर माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स, राइट। अब आप इंटीग्रेट कर लीजिए इसको। ये r4 तो क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहेगा, और ये आपका आ गया r स्क्वायर बाई 2, राइट, माइनस r6 बाई 6 माइनस 2r स्क्वायर r4 बाई 4। You understand this? अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो इसमें आप देखिए 2 से इसको काट दीजिए, ये आ गया 8, राइट। तो यहाँ से लिख लीजिए पाई रो अपॉन 8 म्यू स्क्वायर माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स। लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, ये आपका आ गया, r4 ऑलरेडी था, हायर लिमिट हमने सब्स्टिट्यूट किया, ये कैपिटल r स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना हो गया, जहाँ पे हो गया r6 बाई 2। यू अंडरस्टैंड? स्मॉल r की जगह we have substitute here capital R, so this is r square by 2, तो r4 और r square that is r6 by 2 minus r6 by
6 small r minus, this is already r square, this is r6 by 2. प्लस दिस साइड इज प्लस हियर, तो ये आपका भी आ गया r6 by 2. You understand? This is your r6 by 2. तो ये आपका this one and this one cancel. तो therefore जो आपका टोटल एक्चुअल मोमेंटम आपका आया दैट इज इक्वल टू 5 रो 8 म्यू स्क्वायर माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स ये माइनस साइन आ जाएगा माइनस into r6y6. You understand this? This is equal to तो ये एक आगे टोटल एक्चुअल मोमेंट जब हमने एक्चुअल वेलोसिटी लिया था एट एनी रेडियस आर, उस वक्त हमारा मोमेंटम ऑफ फ्लो पर सेकेंड बेस्ड ऑन द एक्चुअल वेलोसिटी, दिस इज द इक्वेशन. आप इस इक्वेशन को नोट कर लीजिए. यू अंडरस्टैंड? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट yes now we have to find out इसको मिटा दीजिए सारा. Momentum of the fluid based on average velocity. Momentum of the fluid based on the average velocity. अब इसमें हमें निकालना पड़ेगा एक्चुअल वेलोसिटी हमने निकाल लिया. अब देखिए मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? दैट इज मास इनटू वेलोसिटी. That is mass of the fluid per second, mass of the fluid per second into average velocity. यही होगा ना? Into average velocity. Mass mass of the fluid per second into average velocity. तो average velocity क्या है? What is our average velocity? इधर लिख देते हैं.
एवरेज वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी है अगर आप u एवरेज is equal to 1 upon 80 mu minus tau del p upon del x into r square, capital R square. This is your average velocity. You understand that? So average velocity का this is the formula of the average velocity. तो इधर आपका जो मास ऑफ फ्लूइड है अगर रो करें हम तो वॉल्यूम देंगे इसमें वॉल्यूम इनटू एवरेज वेलोसिटी और दिस इज इक्वल टू रो इनटू एरिया वॉल्यूम क्या होगा एरिया इनटू एवरेज वेलोसिटी you understand or this is equal to you can say this is equal to rho into a into u square, right? Rho into a into u square, you understand? तो एरिया आपको मालूम है एरिया इसका क्या होगा पाइप का इधर लिखेंगे सो एरिया ए area of circular pipe of radius r क्या होगा this is pipe r square, right? तो इसकी वैल्यू आप पुट कर लीजिए you understand so this is equal to rho into pi r rho into pi r square and this is equal to average velocity का square तो average velocity आपका दिया है ये है तो ये आपका आएगा 1 upon 8 mu minus del p upon del x into r square और इसका आपका स्क्वायर इसका आपका स्क्वायर होगा 2 पाई r square राइट इसको अगर हम कहें तो क्या क्या लिख सकते हैं इसको रो पाई आर स्क्वायर ऐसे ही आएगा ये आपका होल स्क्वायर है तो ये आपका आएगा 1 upon 64 mu square into minus del p upon del x का whole square into r4 you understand into r4 this is r square this is into r4 you understand r this can be written as 2 pi upon 64 mu square minus del p upon del x into r4 and r square. This is r6. You understand?
momentum of the fluid based on the average velocity, तो momentum of the fluid based on the average velocity जो हमने निकाला, ये कर लीजिए आप रो इंटू पाई 64 म्यू स्क्वायर right. So momentum of the fluid based on the average velocity, ये मैंने यहाँ पे नोट कर लीजिए, रो इंटू पाई 64 म्यू स्क्वायर इंटू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर इंटू r6 and momentum of the fluid based on the actual velocity, ये already we have calculated, so this is equal to this one. Our momentum correction factor. Now momentum correction factor beta. So what is the momentum correction factor? What is the definition? It is defined as the ratio of the momentum of the fluid flow per second based on the actual velocity. So based on actual velocity क्या होगा? That is pi to rho 48 mu square minus del p upon del x whole square into r6 divided by momentum of the fluid flow based on average velocity, ये मैंने निकाला था, this is equal to pi into rho 64 mu square del p upon del x into r6, राइट. तो ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी आपकी, this Archie-Fertali and Archie. This is equal to 4/3. So therefore, beta is equal to 4/. So momentum correction factor की वैल्यू याद रखें. This is denoted by beta and this is equal to 4. So I think you have understood its definition, derivation. और इसका जो वैल्यू है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड फ्लो पर सेकेंड बेस्ड ऑन द एक्चुअल वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय द मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड फ्लो पर सेकेंड बेस्ड ऑन द एवरेज वेलोसिटी टू एनी सेक्शन ऑफ द सर्कुलर पाइप, इस उसका जो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होगा दिस इज इक्वल टू बीटा 4/. यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका डेफिनेशन और डेरिवेशन पे कंप्लीटेड. Now we come to the energy correction factor को भी हम सेम है, derivation almost same है, सिर्फ there is a small difference here and that we will find out here. So energy correction factor. So एनर्जी है, एनर्जी दूसरा आपका आ गया एनर्जी करेक्शन, एनर्जी करेक्शन फैक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा. अब इसका डेफिनेशन क्या है?
इसका डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है? रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन द actual kinetic energy of the flow per second based on actual velocity. It is defined as a ratio of the kinetic energy of the flow per second based on the actual velocity across a section to the kinetic energy of flow per second based on the average velocity, right? So this is the ratio of the kinetic energy across the same section, that is across the same section. So this is the definition. एक definition है, and this energy correction factor, as I told you that this is denoted by the letter alpha. So you can say alpha, this is equal to, तो लिख लीजिए, kinetic energy of flow per second based on actual velocity divided by kinetic energy of flow per second based on average velocity, that is across the same section. I have not written here section, but it is the kinetic energy of flow per second based on the actual velocity across a section. लिख लीजिए, across a section and across same section. You understand? Across same section. So this is the definition and it is noted like this. अब इसका जो डेरिवेशन पार्ट होगा, वहां पे हमने मोमेंटम को कैलकुलेट किया था, और जहां पे हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है. एंड एज यू नो दैट द काइनेटिक एनर्जी, सेम प्रोसीजर वी हैव टू अडॉप्ट हियर. वी हैव टू टेक a small ring of radius small r, its width is dr and it is having a very small area. We have to consider the small ring. तो एरिया अगर की बात करें तो एरिया इसमें ये क्या होगा, एरिया जो रिंग का है, जैसे आपने पहले भी कैलकुलेट किया है, एरिया ऑफ रिंग डी ए दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर. यू अंडरस्टैंड? इसका डेरिवेशन पार्ट भी आप कर लीजिएगा. काइनेटिक एनर्जी आपका फ्लो थ्रू द एलिमेंट्री रिंग, है ना. तो काइनेटिक एनर्जी, तो आपका काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो
This is the derivation part I have started here. Kinetic energy of fluid flow through the elementary ring of radius small r, right? So this is equal to, इसके बराबर होता है इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी, राइट, यू का स्क्वायर, राइट, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू हाफ, मास को क्या लिखेंगे, रो इंटू डी क्यू, राइट, इंटू यू स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड। मास इज इक्वल टू रो इंटू डी क्यू, दैट इज इंटू यू स्क्वायर। और जहां पे आपका डी क्यू है तो डी क्यू किसके बराबर होगा, तो डी क्यू आपका, व्हाट इज योर डी क्यू, डी क्यू दैट इज द डिस्चार्ज थ्रू द स्मॉल रिंग area dq, the discharge through the small ring, this is equal to velocity into area of the ring, right, this is equal to velocity area of the ring। तो velocity तो आपकी u है और एरिया ऑफ द रिंग आपका क्या है, 2 पाई आर इंटू डी आर, अंडरस्टैंड। तो ये आपका डी क्यू की वैल्यू है, तो पुट करें यहाँ पे, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड फ्लो थ्रू द, ये पूरा नहीं लिखूंगा, आई विल राइट डाउन दिस वन, बट दिस इज ये आप नोट कर लीजिए, ऐसे ही लिखना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड फ्लो थ्रू द फ्लूइड फ्लो पर सेकेंड will लीजिए, fluid flow per second through the elementary ring of radius r, this is equal to this, so kinetic energy of fluid flow per second, this is equal to half into dq की जगह आप पुट कर लीजिए, this is equal to 2 pi r into dr, and u स्क्वायर ऑलरेडी है तो ये आपका गया u, अंडरस्टैंड। ये आपका गया So, this is here kinetic energy of the fluid flowing through the elementary ring of the radius r of which dr per second, this is equal to this। अब देखिए u का वैल्यू, you know that the value of u at any radius r velocity distribution से we have to find out। तो u का क्या वैल्यू था, 1/4 mu del p upon del x into r square minus r square, right? So this is the value of u। तो वैल्यू u की वैल्यू आप क्या करें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, you substitute the value of u here। अच्छा, ये आ गया आपका जो काइनेटिक एनर्जी थी, दैट इज थ्रू द एलिमेंट्री रिंग। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, total kinetic energy of the flow, total kinetic energy of the flow per second। So this is equal to इंटीग्रेशन कहां से करेंगे, 0 से r
रो पाई आर। अब u की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो u की वैल्यू क्या आएगी, इसको ब्रैकेट कर लें आप, 1/4 म्यू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होल ब्रैकेट का क्यूब, बिकॉज इट इज यू क्यूब, राइट। into dr, you understand this? तो ये चीजें बाहर आ जाएंगी आपकी, दैट इम्प्लाइज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रो बार ले लीजिए, पाई आपका बाहर आएगा, ये 1/4 म्यू का क्यूब क्या होगा, दैट इज इंटू 1/64 म्यू क्यूब, ये भी बाहर, माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स का होल क्यूब, ये बाहर आ जाएगी सारी चीजें, यू अंडरस्टैंड। इंटीग्रेशन से ऑल दीज आर कांस्टेंट, एंड नाउ दिस इज इंटीग्रेशन साइन 0 से r, राइट, दैट इज r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर into r into dr, you understand? Into r into dr, so total kinetic energy of flow per second, this is equal to rho into pi upon 64 mu cube del p upon del x का होल क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से r, r से अंदर मल्टीप्लाई करें, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर इंटू r माइनस r क्यूब dr, you understand? Now integrate this, इंटीग्रेट करने के बाद रो इंटू पाई 64 इंटू म्यू क्यूब माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स का क्यूब, डेल पी अपॉन डेल एक्स का क्यूब, आप इसका इंटीग्रेशन कर दें, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो कॉमन है, दिस इज आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई 2 माइनस r4 by 4, you understand, and limit is 0 से r। आप ये सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू, दैट इम्प्लाइज रो इंटू पाई 64 म्यू क्यूब डेल पी अपॉन डेल एक्स का क्यूब, लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, आपका जो आएगा कैपिटल आर, जो हो गया r रेज़्ड टू 4/2 माइनस r 4/4, you understand? This we have to substitute the value of this. ओहो सॉरी, ये तो गलत कर दिया, ये तो क्यूब था, इसमें क्यूब वाला लिखा ही नहीं, दिस इज माई मिस्टेक, दिस इज क्यूब, दिस इज क्यूब, दिस इज क्यूब, राइट। आप kinetic energy of rho per second, this is equal to
रो इंटू पाई तो पहले खोल लीजिए आप इसको। ये आपने a माइनस बी का होल क्यूब दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होगा? इसको ओपन करें, आर स्केयर का R6 आ गया माइनस स्मॉल r6 माइनस 3a स्केयर v that is 3r4 into r square plus 3r square into r4 r into dr. You understand? r into dr. So that implies rho into pi 64 mu cube माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स का होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक टर्म 0 से आर, जो आर स्मॉल आर जो है इसे अंदर मल्टीप्लाई करो, R6 इंटू आर माइनस R7 माइनस 3R4 इंटू आर क्यूब प्लस 3r square into r5, right? dr. So that implies, ये तो कांस्टेंट है, जैसे आ जाएगा रो इंटू पाई 64 म्यू क्यूब 64 म्यू क्यूब माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स का होल क्यूब कर लीजिए R6 इंटू आर स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेट करें माइनस R8 बाई 8 माइनस 3R4 इंटू R4 बाई 4 प्लस 3R स्क्वायर into R6 by 6. You understand? और लिमिट इज 0 से R. ओके, अब लिमिट को सब्स्टिट्यूट करें, रो पाई 64 म्यू क्यूब माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स का होल क्यूब
So upper limit is r, so this becomes r 8/2. स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर को सब्स्टिट्यूट करें, आर स्क्वायर इंटू r6, r 8/2 माइनस r 8/8 माइनस 3r4, ये भी आपका कितना r4, 3r8/4 प्लस 3r स्क्वायर, ये भी आपका जो 3r8/6. राइट, तो इसमें आपका जो एलसीएम है ये आई थिंक 24 एलसीएम आएगा. ये 24 एलसीएम आएगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर ले. 2 ये हो गया 12, ये आ गया 12r8 माइनस 3r8 18r8 प्लस 12r8. right, this is 24 and this is 21, 24, 3/24 so this is you can say इसको आप ऐसे लिखें, rho into pi 64 mu cube del p upon del x का होल स्क्वायर क्यूब एंड इनटू ये कितना हो गया 24, ये हो गया 3r8/24. You understand? 3r8/24. So this is equal to kinetic energy R rho per second. This is a rho into pi 64 mu cube del p upon del x r8/8. This is the total actual kinetic energy. ये एक आ गया, right? You understand this? Of second, we have to calculate kinetic energy based on the average velocity. Kinetic energy based on the second one, kinetic energy based on the
average velocity, right? Actual velocity के ऊपर we have to find out, तो लिख लीजिए based on actual velocity. तो काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी वी विल फाइंड आउट. देखिए ये तो आपको पता है, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर. यू अंडरस्टैंड? हाफ इंटू मास इंटू एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर. So this can be written as half. मास को कैसे लिखेंगे? रो इंटू वॉल्यूम होगा ना, रो इंटू वॉल्यूम, दैट इज एरिया इंटू, जब डिस्चार्ज कर लीजिए, एरिया इंटू डिस्चार्ज, दैट इज यू इंटू यू स्क्वायर, राइट? दिस कैन बी रिटन एज, ये आपका क्या हो गया, मास की जगह, ये आपका आ गया मास की जगह, राइट? तो मास क्या है? रो इंटू एरिया इंटू एवरेज वेलोसिटी, दैट इज डी क्यू. सो दिस इज यू कैन से 1/2 रो, what is your area? This is 2 pi r dr, because we are considering a small ring here. So area is, we are not considering the small ring here. तो एरिया आपका जो होगा, ये आपका आ गया a u r cube, ये u बार लिखा था, राइट? So we are taking the average velocity here, so there is no need to take the elementary ring here. तो मैं कह सकता हूं कि I can write it like this. This is half into rho into area क्या है? Pi into r square, area of the pipe, pi into r square, और u का वैल्यू you know that is equal to क्या होगा? Average velocity 1/8 mu minus del p upon del x into r square, right? इसका q. You understand? This is average velocity. So simplify कर लीजिए आप. That implies 1/2 rho pi r square So we can write it like this, 1/64 mu cube into 1/8. दिस इज 8 का क्यूब है ना, दिस इज, मैंने कर लिया 8 का स्क्वायर 1/464 म्यू क्यूब एंड इंटू 1/8. यू राइट ऑन इंटू 8, राइट? मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, इंटू 8. इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम हियर, राइट? फिर आगे आ गया माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स का क्यूब इंटू R6. अंडरस्टैंड? इंटू R6. राइट?
Now this is written as this is written as rho into pi and 64 and this 128 mu 128 mu cube 128 8 म्यू क्यूब कर लीजिए, 8 भी है ना, यस 128 8 म्यू क्यूब डेल पी अपॉन डेल एक्स का क्यूब इंटू R6, राइट, R6 and R2, this is R8, this is R8. तो ये आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन द एवरेज वेलोसिटी, वो था, ये था आपका काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी, यू अंडरस्टैंड। तो ये इक्वेशन आ गई काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। नाउ वी हैव टू फाइंड द करेक्शन फैक्टर। आप देखिए ये करेक्शन फैक्टर आपका निकल जाएगा, सो करेक्शन फैक्टर यहां पे एनर्जी करेक्शन अल्फा, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लो पर सेकेंड बेस्ड ऑन द एक्चुअल वेलोसिटी, तो बेस्ड ऑन द एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, रो इंटू पाई 64 म्यू क्यूब डेल पी अपॉन डेल एक्स होल क्यूब into R8 by 8, right, divided by rho into pi 128 8 mu cube del P upon, right, सारे कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट ये आ जाएगा 64 एंड दिस इज 2 ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा दिस इज इक्वल टू, यू अंडरस्टैंड। तो एनर्जी करेक्शन फैक्टर कितना आया 2 और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर कितना था 4/3। तो ये जो आज टॉपिक था आपका लेक्चर था, ये मोमेंटम करेक्शन फैक्टर और एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्या है, व्हाट इज दिस, इसका डेफिनेशन क्या है, इसकी डेरिवेशन कंप्लीट क्या है, तो उसके ऊपर मैंने दिया है। बट ओनली यू हैव टू रिमेंबर एनर्जी करेक्शन फैक्टर, जो आपको रिमेंबर करना है, क्योंकि ये इतना बड़ा डेरिवेशन जो है वो मोस्टली ये सिर्फ आपको मैंने करवाया था प्रैक्टिस के लिए कि अगर कभी आ सकता है, अदरवाइज जहां पे जो आपने याद रखना है वो क्या है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर इन केस ऑफ द लैमिनार फ्लो व्हेन इट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर पाइप, राइट। तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर एट एनी सेक्शन
अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसका वैल्यू याद रखिएगा, दिस इज इक्वल टू 4/3 एंड द एनर्जी करेक्शन फैक्टर इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 2। तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर को हम बीटा से डोनेट करते हैं और एनर्जी करेक्शन फैक्टर को अल्फा से डोनेट करते हैं। दिस वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर, रेस्ट I have just given the derivation and this thing that you can see also, ये भी आप देख सकते हैं। So you must know that how we have got this value। आपको ये पता होना चाहिए था कि हमें ये वैल्यू, क्योंकि ये मोस्टली इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशंस बहुत कम लोग ही करवाते हैं, वो सीधा लिख लेते हैं कि एनर्जी करेक्शन फैक्टर दिस इज इक्वल टू 2, अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर दिस इज इक्वल टू 4/3। बट हियर आई हैव गिवन यू द कंप्लीट लेक्चर ऑफ दिस, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट डेरिवेशन था, मैथमेटिक्स था, काफी लंबा चौड़ा था, राइट। उसमें ये आपको ये सारी चीजें आपको ड्राइव करके मैंने आपको बताया कि एनर्जी करेक्शन फैक्टर की वैल्यू 2 कैसे है एंड मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की वैल्यू 4/3 कैसे है। बट यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू, राइट। ये वैल्यू आप याद रखिएगा, एक इसमें वैल्यू करेक्शन फैक्टर, एनर्जी करेक्शन फैक्टर की क्या है और दूसरा क्या है, राइट। तो आज जो मेरा टॉपिक था उसमें ये 5th लेक्चर है आपका, और इसमें हमने मोमेंटम करेक्शन फैक्टर और एनर्जी करेक्शन फैक्टर का भी दिया। अदरवाइज आई एम गोइंग टू एक्चुअली लीव दिस, यू कैन से टॉपिक। मैं इसको पहले सोचा था कि आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू दे दूं और इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे, but I want to make you clear that how we have got the value of this, किस तरीके से कैसे derivations की है, and mostly you can say sometimes this type of the question you can get in the UPSC examination or sometimes in other examinations also, but ये आपका थोड़ा derivation lengthy था, लंबा था, इसमें आप go through कीजिए इसको और जो इसकी वैल्यूज हैं उसको आप याद रख लीजिए, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।